قربانی کے گوشت کے باربیکیو کی دعوت تو آپ کے گھر میں ہوگی، مگر باربیکیو بنے گا بازار سے۔ کراچی والوں کے لیے آسانی ہے، گوشت دیں اور اپنی مرضی کے ٹائم پر تیار لذیذ باربیکیو گھر لے جائیں۔ 500 روپے سے لے کر 1000 روپے کلو میں دھاگا کباب، بہاری کباب، گولا کباب بنوائیں۔ اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمود ریاض سے۔ جی محمود، بتائیے۔ شہر قائد کے باسی جو ہے قربانی سے فارغ ہو چکے ہیں، اب دعوتوں کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس کے لیے کراچی کے اندر ایک بہترین رسم ہے کہ لوگ اپنے قربانی کے جو گوشت، جانوروں کا قربانی کا گوشت ہوتا ہے، اس کا لذیذ چٹخارے دار باربیکیو بناتے ہیں، پھر رات کو وہ گھر لے کے جاتے ہیں اور گھر میں محفل جمتی ہے۔ اس وقت بھی ہم ایسے ایک مشہور جگہ پر موجود ہیں۔ یہ بتائیں کہ کیا کیا چیز قربانی کے گوشت کی بنا رہے ہیں؟ سر، ہمارے پاس اس وقت بیف میں دھاگا کباب، گولا کباب، فرائی کباب، بیف بہاری بوٹی بن رہی ہے اور کڑھائی بنا رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ سب سے زیادہ گولا کباب وغیرہ بنتا ہے، یہ ایک پر کلو کیا پیسے لیتے ہیں؟ سر، اس سال ریٹ تھوڑے ہمارے ہیوی ہیں، 760 روپے کلو پر کے جی ہے۔ 700۔ یہاں پر بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں جو کہ فوری طور پہ قربانی، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ باربیکیو کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ جی بالکل، کباب بنوانے دینے آیا ہوں۔ تو گھر والے کب تک یہ دعوت ہوگی؟ انشاءاللہ رات میں، آج رات کو 10 بجے کی رکھی ہے، تو دیکھتے ہیں۔ آپ سے تھوڑا سا سر، کراچی والے جو ایک بڑی اچھی رسم ہے کہ قربانی کے گوشت کی باربیکیو، کیا کہیں گے؟ آج دعوت ہوگی رات میں؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمیشہ ہم بنواتے ہیں یہاں سے، اور بڑا اچھا بنتا ہے یہاں پہ، تو اسی لیے ہر دفعہ عید پہ ہم لوگ یہیں پر آتے ہیں، بہاری بوٹی کے لیے، بہاری کباب کے لیے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے گوشت جو ہے قربانی کا لوگ یہاں پر لا رہے ہیں، اور یہاں پر ایک آہستہ آہستہ جو مشہور لوگ بنانے والے ہیں، اور بھی لوگ یہاں پر رش لگا ہوا ہے۔ آپ کا نمبر پیچھے ہے، تو سب کو دعوت دے دیے باربیکیو کی؟ ہاں دے دیے۔ تو کتنے لوگ ہوتے ہیں، کیسا ہوتا ہے؟ 50-60 لوگوں میں۔ 50-60 لوگوں کے لیے آپ قربانی کے گوشت یہاں پہ دیتے ہیں؟ تو یہاں پر دیکھیں کہ جیسے یہ لوگ بڑی تعداد میں یہاں پہ جمع ہے، جن کے گھروں پہ قربانی ہو گئی ہے، وہ گائے بکرے کا گوشت لا رہے ہیں، اور یہاں پر لذیذ باربیکیو بنے گا، جس میں دھاگا کباب، گولا کباب، بہاری کباب، اور اس کے بعد یہاں سے تیار پراٹھے، چٹنی اور گرم گرم باربیکیو ہوگا، اور گھر لے جا کر دوست احباب رشتہ بہت داروں کے شکریہ ساتھ محمود ریاض۔ کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے بارشوں کے دوران شہری انتظامیہ کی کارکردگی کو بہتر قرار دے دیا۔ کہا، ڈاکٹر فاروق ستار کو واپس کب اور کیسے آنا ہے، ڈاکٹر صاحب نے خود طے کرنا ہے۔ ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی نے عید الاضحیٰ کی نماز عزیز آباد میں مدنی مسجد میں ادا کی۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ کراچی میں بارشیں اس سے بھی زیادہ ہوں گی، شہر کو گرین بنانے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک بارشوں کی بات ہے تو میرا خیال ہے اب کئی سال سے اس طرح کی بارشیں نہیں ہوئی ہیں۔ اس شہر کو اس سے زیادہ بارشیں چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی یہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے جو آتا ہے، اس کو سب سے پہلے سے کراچی کو سرسبز کرنا ہے، اور اس کے بعد بارشیں بڑھیں گی انشاءاللہ، اس کے انتظامات کرنے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے شہری انتظامیہ کی کارکردگی کو بہترین قرار دیتے ہوئے کہا کہ بارشوں میں انتظامات بہتر تھے، لیکن مزید بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اس دفعہ بارشیں ہوئی ہیں اور اس سے کراچی کی جو صورتحال ہوئی ہے اس سے بہتر ہونی چاہیے تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوششیں کی گئی ہیں، بعض جگہوں پر پہلے سے زیادہ بہتر صورتحال رہی ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے مزید کہا کہ ڈاکٹر فاروق ستار سے ملاقاتیں کوئی خفیہ نہیں، لیکن ایم کیو ایم میں کب اور کیسے واپس آنا ہے، یہ ڈاکٹر فاروق ستار نے خود طے کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز کشمیر پریمیئر لیگ راشد لطیف نے قوم کو عید کی مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ قربانی کرتے وقت ایسے لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو اس کی اطاعت نہیں رکھتے، اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ قربانی کرتے وقت ایسے لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو اس کی اطاعت نہیں رکھتے، اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں شامل کریں۔ کشمیریوں نے بھی پاکستان اور اپنی آزادی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اس دن کشمیریوں کی قربانیاں نہ بھولیں۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں، ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز کشمیر پریمیئر لیگ راشد لطیف کا کہنا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد، اور قربانی کرتے وقت ایسے لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو اس کی اطاعت نہیں رکھتے، اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں شامل کریں۔ کشمیریوں نے بھی پاکستان اور اپنی آزادی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اس دن کشمیریوں کی قربانیوں کو نہ بھولیں۔ کی جانب سے، کشمیر پریمیئر لیگ کی جانب سے آپ سب کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت مبارک ہو، اور یہ قربانی کا دن ہے، اور ہم کشمیر کا نام لیتے ہیں تو جس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے اور کشمیریوں کے لیے، بڑا یادگار بنا دیتے ہیں ایسے دن، اور اپنے قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو، جتنے بھی جو مظلوم لوگ ہیں ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، اور
ईद मनाएं, लेकिन उनके साथ भी मनाएं जो इसका हौसला नहीं रखते और इतनी ताकत नहीं है कि वो ईद मना सकें। और हमारा पैगाम कश्मीर प्रीमियर लीग की जानिब से यही है कि अपने साथियों का साथ दें और स्पेशली इस मौके पे कश्मीर में जो कुर्बानियाँ दी गई हैं उनको ना भूलें। शहर कायद में सनतों की अहम तरीन स्टेट एवेन्यू रोड बदतरीन टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाली के बाद सड़क पर माल बरदार गाड़ियां उलटना मामूल बन गया। अवाम को ट्रैफिक जाम समेत दीगर मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। शहर कायद में जहां आम सड़कें टूट फूट और मसाइल का शिकार हैं, वहीं लाखों करोड़ों रुपए टैक्स देने वाले सनती इलाकों में भी शहरों की हालत दगरगूं है। साइट एरिया था एयरपोर्ट सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 को मुआशी सरगर्मियों के लिहाज से बहुत अहमियत हासिल है, मगर शेरशाह से गनी चौरंगी तक ये सड़क सिफाई हस्ती से मिट चुकी है। ये सड़क की खराबी से पहली बात हुई है कि रोड इतना ख़राब है और दूसरा कंपनी वगैरह की गाड़ी आती जाती है। अब ये रोड बहुत अरसे से ख़राब है और जैसे मतलब बारिश हुई है, मुझे नहीं लगता कि 2 महीने से पहले या 3 महीने से पहले ये पानी सूख जाएगा। स्टेट एवेन्यू रोड को एशिया की सबसे बड़ी शेर शाह कबाड़ी मार्केट के ताजर भी इस्तेमाल करते हैं। खस्ता हाली के बायस इस सड़क पर माल बरदार गाड़ियों का उलटना और ट्रैफिक जाम रहना मामूल बना हुआ है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इसको लोड गाड़ी में ये साथ होता है कि गाड़ी एक्सल तोड़ देता है, सही है, लोड गाड़ी उसमें ले जाना भी अजाब है। तो ये पीपल पार्टी का भी 2000 सिंध हुकूमत का वो है, तो मेहरबानी करे ये रोड हमारे लिए बना है, हम गाड़ियों वाले को मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। ये इधर हम जा रहे हैं, ये सारे कड्डे वगैरह होते हैं, हम इसमें गिर जाते हैं, लेडीज भी गिर जाते हैं, इधर रास्ते पे लोग जा नहीं सकते, सारा पानी मानी जमा हो जाता है। हालिया बारिशों के बायस स्टेट एवेन्यू रोड का एक ट्रैक शदीद मुतासिर होकर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुका है, जिससे मसाइल मजीद बढ़ रहे हैं और ये सड़क अपनी बहाली के लिए अरबाब इख्तियार की तवज्जो की मुंतज़िर है। कैमरामैन आगा रफी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आपको बताएं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। बल्दिया टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत कई इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बादल बरस पड़े हैं, जिसमें बल्दिया टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत कई इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है, जिससे मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेश गोई की गई थी कि ईद उल अज़हा के दिन भी बारिश होनी है और आज काफ़ी जगहों पे मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश हो रही है। बल्दिया टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत कई इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, कराची में बारिशों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो रहा है और आज भी बादल बरस पड़े हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें बल्दिया टाउन है, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत कई इलाके हैं जहां कहीं हल्की बारिश हो रही है और कहीं तेज़ बारिश हो रही है और मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए लोगों ने अपने घरों से बाहर जो हैं वो निकले हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं, मौसम खुशगवार हो गया है, शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। आज ईद उल अज़हा भी है और कई कई इलाकों में पानी भी जमा है, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे जो है कुर्बानी करने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। ताहम बहुत हिफाजती इंतज़ामात भी किए गए हैं, काफ़ी इक़दामात किए गए हैं गलियों में और हसास मकामात पर जहाँ पानी ज़्यादा खड़ा होता है वहाँ जो है वो पंप्स भी लगाए गए हैं कि ज़्यादा देर तक वहाँ पानी खड़ा ना रहे। इंतज़ामिया की जानिब से काफ़ी ज़्यादा इक़दामात अच्छे किए भी गए हैं, लेकिन फिर भी बारिशों का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की बारिश हो रही है, कहीं तेज़ बारिश हो रही है, ताहम सड़कों और गलियों में पानी जमा होना तो है मामूल का बात बन चुकी है। ताहम आज ईद उल अज़हा है और लोगों को भी काफ़ी मसले मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। दूसरी जानब कुछ जो शहरी हैं वो इस मौसम को एंजॉय करते भी दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने जो है वो सी व्यू का भी रुख कर लिया है। कुर्बानी से फ़ारिग होने के बाद लोगों ने अपने घर से बाहर निकले हैं और इस मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। समोसे पकौड़ों की दुकानों पर भी रश पड़ गया है और आज वैसे भी ईद उल अज़हा का पहला दिन है, तो घर में जो है वो वैसे बारबेक्यू पार्टियां चल रही हैं। NED यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के तलबा ने नए मुनफरद एग्ज़ाम के जहाज़ तैयार कर लिए। तलबा के हुनर की अक्कासी करते जहाज़ शुरा की तवज्जो का मरकज़ बन गए। सैयद ज़ुबैर राशिद ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं।
NED यूनिवर्सिटी के तलबा की मेहनत रंग ले आई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने नए मुनफरिद इकसाम के जहाज तैयार कर लिए। जहाजों को हवा में उड़ता देखकर शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके। तलबा कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ने हमें अमली तौर पर अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मौका फराहम किया। इस तरह की इनोवेशन के साथ साथ न सिर्फ नए आइडियाज मुतारिफ होते हैं बल्कि तलबा को अपनी सोच इस्तेमाल करने का भी मौका मिलता है। प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है हमारा, मतलब बेसिक जो होता है वो सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाते हैं और यूनिवर्सिटी भी ऑलमोस्ट सपोर्ट करती है। मैं कहूँगा कि इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट करूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि कराची में आइंदा भी इस तरह के इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एरोनॉटिक्स से रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड ऐसे कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स जो है अपनी स्किल्स को, अपनी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करें। जबकि उस्तातिज़ा कहते हैं कि इस तरह की सरगर्मियाँ मुस्तकबिल में तालिब इल्मों के लिए बहुत कारआमद साबित होंगी। बहुत फ़ायदे हैं। देखो ना, दुनिया जो है अब कहाँ नहीं जा रही है, ड्रोन्स अब आ गए हैं। Drones is nothing but aeronautics. So things are improving and I want these children, they should understand aeronautics, don't have to study it but understand, because eventually it will help them in the world. अपनी काविशों का लोहा मनवाते ये तालिब इल्म न सिर्फ NED यूनिवर्सिटी बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। वैल्यू एडिड टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स ने ईद के बाद सनतें बंद करने का ऐलान कर दिया। चीफ कोऑर्डिनेटर वैल्यू एडिड टेक्सटाइल फोरम जावेद बलवानी का कहना है कराची के एक्सपोर्टर्स और सनतकारों के साथ सौतेली माह जैसा सलूक रवा रखा जा रहा है। वैल्यू एडिड टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत के नारवा सलूक के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैल्यू एडिड टेक्सटाइल फोरम के चीफ कोऑर्डिनेटर जावेद बिलवानी का कहना था कि 11 माह से गैस की बंदिश के मसाइल दरपेश हैं। हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस ईद के बाद अपनी फैक्ट्रियाँ और सनतें बंद कर देंगे। एक दफ़ा उन्होंने हमारी बात मानी थी, एक साल सर्दियों में 2019-20-21 में 20-21 में, और उस वक़्त जब हमने इनको कहा ना कि आप देखना ये कराची का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, आपने हमारी बात मानी, तो उन्होंने आके कंफर्म किया रज़ाक दाऊद ने कि आप लोग की बात बिल्कुल सही निकली, जितना आपने कहा उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा। जावेद बिलवानी ने बताया कि 7 ममालिक को इंडस्ट्रियाँ लगाने के लिए खुदूत लिखे हैं। हमने UAE को लिखा है, हमने वियतनाम को लिखा है, हमने कंबोडिया को लिखा है, कंबोडिया हमारा डेलीगेशन जा भी रहा है, और जॉर्डन से हमने बात की है, जॉर्डन वालों को भी लिखा है, मैक्सिको को भी हमने लिखा है कि आप अगर हमें जगहें दें तो हम उधर आते हैं इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि काफ़ी पाकिस्तानियों ने वहाँ लगाई है। एक्सपोर्टर्स का कहना था कि कराची से 54% एक्सपोर्ट होती है, लेकिन फिर भी इसे नज़रअंदाज किया जाता है। गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब से ये अपील करूँगा कि आप जो है, जैसे बिलवानी साहब ने कहा, कराची वालों के मसले सुने। 54% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो है यहाँ आके हमारे साथ बैठें, कोई ऐसा लाएअमल बनाएं कि मतलब पूरा मुल्क चले। हम ये नहीं बोलते कि खाली कराची चले, पंजाब के अपने मसले हैं, कराची के अपने मसले हैं, हर एक के मसले हैं, हर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का कहना था कि कराची के सनतकार बेहाल और बेयारो मददगार हो गए हैं। $6.5 पर LNG देने का झांसा दिया गया, जबकि सुपर टैक्स समेत मजीद टैक्सों का बोझ सनतकारों पर लाद दिया है। कैमरामैन कयूम शेख, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।